Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. So today our second time we met for uh, Yes. for making you confirm. आपको कंफर्म करना था कि सेशन में क्या क्या होगा, ठीक है ना? जी मैम. Yeah. So someone is there. You are Asad. I think you are new here. Hello. जी. Okay. So tell me something about you, Asad. Hello. आप अपने बारे में कुछ बोलिए. हेलो. आजाद. हेलो. हेलो आजाद. ये भी आजाद. Unmute your mic. Unmute your mic. Okay. I think he just feels shy, maybe shy feeling. Okay, I will talk to him later. आजाद. आजाद अपने बारे में बताओ मैडम को एक बार. Okay, no need to. I think he is a bit. Okay, no problem. I will talk to him later on. So here something is there. I wanna give. I wanna give some thing for you. Okay. So in the class, what are the things will be done? Are you? Can you hear me? Can you hear me? Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Shahid, can you hear me? जी मैम जी. Yeah. So I am. I wanna make you share something. I am just sharing my screen. What are the topics will be done in the session? सेशन में क्या क्या टॉपिक्स कराए जाएंगे उसका एक मान लीजिए एक शो मतलब कुछ सैंपल दिया जाएगा, दिखाया जाएगा आपको, ठीक है? ओके. So I'm sharing my जी मैम. screen right now, and I think it would be better if I do share my screen and tell you what's the topic will be done. Okay. So please जी मैम. just confirm me if you getting my. Now can you see the screen? Can you see the screen? शाहिद भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ आ रही है हाँ आपकी हाँ आवाज. आपकी आवाज आ रही है. हेलो. जी मैम जी. जी आप आप लोगों बोलिए. की. काफी हाँ, टाइम आप से लोगों मेरी की आवाज नहीं आवाज आ आ रही थी रही आपके है. पास. हाँ. ओके. माय नेम इज केबी आजाद एडवोकेट. Okay. Thank you for your response. Thank you for your response. And now you see, I'm going to share some screen, my screen here, and there will be some syllabus about the syllabus. What are the topics will be done in the session? Okay. सेशन में क्या क्या जी मैम सिलेबस जी. कराए जाएंगे उसका एक रिव्यू होगा. आप लोग अच्छी तरह से देख लेना कि सेशन में जब आप आओगे तो क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या बोला जाए, ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में अच्छा सा मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाए. ओके. जी. Okay, now I'm sharing my screen. So can you see this one here? Can you जी see मैम this? जी. Yeah. होम Please स्टेशन. take pen and paper. Please take pen and paper, and I will be discussing all this with a brief explanation there. And I think that would be easier for you to grab the knowledge about how to speak in English. Okay. जी मैम. Yeah. Okay. So please write down. First one is articles. Articles will be done. Okay. Articles will be done. Yes. Next, articles means all of us, every one of us know about. Everybody knows about articles A and B. So what's the use of
what's the use of this, we shall be making you understand in the session. Okay, next one is, please write down parts of speech. Parts of speech. I think you, if you write the syllabus, that would be better for all of us to confirm. Okay, are you writing? जी मैम. Yes, thank you. Next one, you write sentence framing. Sentence framing, it's really important in making speaking English fluency. Sentence framing, how to, if you wanna say something to someone, so how to make the sentence so that someone can understand you. That is the center of discussion. Okay. जी. Okay, so if you don't understand any topic here is being given, so please let me know. Whenever you have any queries, I will let you know. Okay, so next one is translation. Translation is really phenomenal for making your speaking a good in track. Translations means some sentences will be there. Sentences means translations means आपको हिंदी सेंटेंस कुछ दिए जाएंगे, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. जी जी. हाँ हाँ, इंग्लिश में दिया जाएगा ताकि ग्रामर्स. इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी. हाँ, yes, that's called translation. That's right. Thank you for your quick response. Next, how to make questions. How to make questions, it's really important. Why it is important, you see, if you wanna talk something, if you wanna get something to know from any other person, then you have to ask in such a way so that you can get the exact reply. What do you want to get, the way you wanna get. Okay, आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जिस सवाल के आपको जवाब वही आए, वो जो आप सवाल का जवाब चाहते हो, उस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको सवाल भी वैसे ही पूछने होंगे, है ना. तो अगर आप जैसे मानो, जैसे आपने बोला कि जैसे आप किसी के पापा का, मतलब आपके फ्रेंड के पापा क्या करते हैं, तो आपने बोला कि हु इज़ योर फादर. अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मतलब आपके पापा कौन है. बट अगर आप व्हाट इज़ योर फादर, आपको जानना मतलब आता है, तो इसको समझ में आएगा कि आप बोलना चाहते हो कि आपके पापा क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, है ना. तो दैट इज द वे ऑफ आस्किंग, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस so that you can get the exact reply you want. Okay, that's important. That's important, and that should be done in the session. Next one, you please write down tenses. Tenses, do you know, means this one, present indefinite, past indefinite. That means about the time form, in which time हमने किस टाइम पे क्या बोला, और उस टाइम को लेकर हमें क्या चीज़, क्या इंग्लिश में बोलना है. अगर हमने प्रेजेंट में कोई बात बोली है, तो प्रेजेंट में इंग्लिश को, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हमने बोला है, उसको इंग्लिश में बोलना कैसे है, वहाँ पर वर्ब क्या लगाना है, उसमें क्या मतलब सब्जेक्ट क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, या वाज आएगा. जैसे फ्यूचर में क्या होता है, तो फ्यूचर में जब बात करते हैं तो उसको कैसे इंग्लिश में बोलना है. पास्ट में जब कुछ चीज़ हो गया, उसके बारे में जब हम किसी को बोलते रहते हैं, that how to make that kind of sentences, and that relates to tenses. Okay, समझ में आया आप लोगों को. हाँ, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या क्या होने वाला है, मतलब सेशन में क्या क्या होगा. आप मेरे यहाँ एक सवाल आया था कि इंस्टीट्यूट से कि मतलब सेशन में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या सेशंस में होंगे जिसके ज़रिए हम फ्लुएंसी को एक्वायर कर सकते हैं, मिल सकता है हमें, है ना. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम सिलेबस पर ही काम कर ले, ताकि क्या क्या होगा इसके लिए हम बात कर सकते हैं. तो यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होगा, है ना. जी. अच्छा, ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन. प्लीज राइट डाउन ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जो एक टॉपिक दिया जाएगा, दैट वन टॉपिक विल बी गिवन टू यू, and that subject matter will be discussed both the two persons or more than two persons.
ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप मतलब 2-3 जन बैठे हैं, बैठ के कोई भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, है ना। तो हम जब 2-3 जन बैठते हैं, बैठकर, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हेजिटेशन निकालने के लिए, क्या बोले कि क्या निकालने के लिए, हेजिटेशन निकालने के लिए, डर हेजिटेशन, निकालने हाँ के लिए, नहीं, ताकि सही से हेजिटेशन समझ तो सेशन में होता है इसको निकालने के लिए। पर मान लीजिए आपने कोई टॉपिक, मतलब कोई खबर आपको मिली है ना, टॉपिक हाँ हाँ, कोई टॉपिक आपको किसी खबर टॉपिक मिली पे है, मान लीजिए इलेक्शन के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, कोई भी मतलब इलेक्शन के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, तो दो जन मिलके बात करते हैं, या 2 जन 3 जन 4 जन मिलके बात करते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, इलेक्शन में क्या होने वाला है, ऐसा है वैसा है, हम सब कुछ बात करते हैं। तो हम किस भाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं या कोई और भाषा लेते हैं, है ना। तो इस यहाँ पे क्या होगा, इस ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होगा कि कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसमें आप बात करोगे, एंड दैट शुड बी इन इंग्लिश। Now you can ask me, if we don't know how to speak in English, how is it possible for us to make the group discussion successful? So first of all, you will be trying to talk in English without caring of the grammars, without caring of the pronunciation, without caring of the vocabulary. After that, day by day, when you will be improving, your group discussion will also get improved. Okay? आप लोगों को पहले टॉपिक दिया जाएगा, आप बात करना शुरू करोगे। देखिए, कोई भी चीज़ जब भी आप बोलते हो, कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो, तो शुरुआत बहुत ज़रूरी होता है ना। तो शुरुआत नहीं करेंगे तो इसमें आप लोग मतलब जान नहीं पाओगे। तो जो भी आपको पता है इंग्लिश में आप बात करोगे, इसको देखकर स्टडी करके हम और भी प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेंगे, वोकेबुलरी यूज़ करेंगे, ग्रामर्स यूज़ करेंगे और इसको एनहेंस करेंगे। वी विल बी एनहेंसिंग ग्रुप डिस्कशन मोर बेटर। ओके, ठीक है, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है कुछ, मतलब आप लोगों को कुछ पूछना है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग अप टू दिस मच आई आस्क्ड टॉक्ड विथ यू। मैंने आप लोगों को अभी तक जो बोला है, आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें? अगर आप पूछोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर ऐसा कोई नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अगर आप लोग पूछना, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके दिमाग में या दिल में कुछ कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज आस्क मी। यहाँ तक तो मैम जो आपने पढ़ाया है, यहाँ तक समझ में आ गया। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच।